that when God takes one, say, some power, He normally provides us with something extraordinary. I don't know, but many people say that those people who are physically challenged, they have some other power which we may not be having. And this proves very, very correct when it comes to what we call as Evelyn. So let us start. Rush hour crowds jostle for positions on the underground train platform. मतलब जो आपका लंदन में ट्रेन प्लेटफॉर्म है, जैसे हमारे यहाँ भी मेट्रो स्टेशन है, पहले जमाने मतलब वहाँ पे तो लंदन में तो अंडरग्राउंड इज वेरी फेमस. द वेरी फर्स्ट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम हैरिंगटन टू पैडिंगटन, वहाँ पर है. तो वहाँ पर लोग एक दूसरे को पुश करते हुए, मतलब इतनी भीड़ होती है कि धक्का मुक्की होती है. A slight girl, यहाँ पर द स्लाइड जो है, it has been used for the physical build-up. Looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. मतलब वो nervous थी, but खुश भी थी. She was not able to hear the sound, but she was able to feel the vibrations. And why she was excited? Because it was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any fresh from a Scottish firm. एक reality है that UK always has a pride. आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे that how Britain was, Scotland जो है, that became part of Britain. But Scotland जो है, it is a countryside, beautiful. ये स्कॉटिश को बिलोंग करती थी. एंड इसके लिए इतनी बड़ी जगह पे रॉयल स्कूल ऑफ एकेडमी ऑफ म्यूजिक में जाना was really a gift. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. मतलब ये कोई डर नहीं था, ये तो हर एक को होता है. इसके लिए तो एक और चैलेंज था, एंड वो था she was profoundly deaf. profoundly वैसे यूज करते हैं बेटा, deep, मतलब वो पूरे तरीके से डेफ. We have people like Helen Keller. अगर आपने पढ़ा हो, we had earlier, we used to have the novels in our 9th and 10th standard. मतलब ये बुक्स के साथ में नॉवेल्स भी हुआ करती थी. तो एक बहुत सुंदर नॉवल था हमारा हेलन केलर के ऊपर, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ. सेम स्टोरी है जैसे आपकी एवेलिन की है, एंड इट इज ऑल्सो द ऑटोबायोग्राफी, एंड इट इज ऑल्सो द ट्रुथ. जैसे ये आपका ट्रुथ है, वो भी. हेलन केलर जो थी, शी वॉज पार्शली ब्लाइंड, एंड दैट वॉज बिकॉज ऑफ द that is because of the illness she had. लेकिन आप सोच सकते हो, उसका ना, she had lost her blindness की वजह से आंखें चली गई. धीरे 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 जब कुछ दिखाई नहीं देता था, उसकी बोलने की भी शक्ति चली गई. she was not, मतलब वो गूंगी नहीं थी, डम्ब नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब कुछ समझ ही नहीं आता था, दिखता नहीं था, उसके थोड़ी कान भी कम हो गए थे. But even though after all these, she had graduated from Oxford, नहीं, हार्वर्ड से उसने किया था in 1900, the first women. Can you believe? मतलब ये भी जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, उसी के जैसा वो स्टोरी है. There's a reality.
And that is how Evelyn जो थी, she had lost, yet she had tried to become a musician. जैसे Helen Keller had graduated, she had learned so many languages. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. मतलब वो एकदम तुरंत नहीं हुई थी. ऐसा नहीं था कि कान में कोई चोट लगी थी and she became deaf. Her mother remembers noticing something when she was waiting, when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she did not move. वो बुला रहे थे, उसको सुनाई नहीं दिया. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. Isabel Glennie is her mother. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. Conceal मतलब hide, छुपाना. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. जब वो 11 साल की थी तो उसके जो स्कोर्स थे पेपर में आ रहे थे वो बिल्कुल कम हो गए थे. डिटीरियोरेट मतलब बहुत डिक्रीज हो जाना. तब उसके पेरेंट्स ने बोला कि उसको स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाओ. It was then discovered that hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तब पता लगा कि उसका जो नर्व की कमजोरी की नर्व के डैमेज की वजह से उसके सुनने की शक्ति खत्म हो रही थी. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. मतलब उसको नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहिए और उसके कान में हियरिंग एड होना चाहिए. एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक. ये पेपर में क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर एंड दैट टू इन डीएवी. व्हाई डिड शी से, मतलब उसके लिए तो दिस वाज एन एम्बैरेसमेंट. उसको स्कूल से निकालने के लिए बोला जा रहा था. बट एवेलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but her percussionist Ron Forbes spotted her potential. अब भाई बिना सुने आप म्यूजिक तो सुनना ही तो होता है, बिना सुने कैसे करेगी. लेकिन रॉन फॉर्ब्स जो थे, percussionist is a person who plays the drum, tabla, etc. उसको हम percussionist बोलते हैं. उन्होंने इसको बोला. He began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears. Try to sense it some other way. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up, मतलब बॉडी के ऊपर की तरफ, and lower from the knee. मतलब जो ऊपर जब वाइब्रेशन होती थी तो उसके ऊपर की बॉडी में वाइब्रेशन होता था और नीचे जब सुर जाता था तो नीचे की वाइब्रेशन. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibration. उसने कान नहीं ओपन किए थे, उसने अपना माइंड ओपन किया था, अपनी बॉडी ओपन की थी क्योंकि उसकी बॉडी सुनती थी. द रेस्ट वॉज sheer determination and hard work. बाकी उसकी मेहनत और उसकी लगन. She never looked back from that point onwards. She toured the UK with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. मतलब उसने उसको अपना करियर बनाने का सोचा. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of Academy. सोचो. She gradually moved from the orchestral work to solo performances. पहले तो वो सबके साथ में ऑर्केस्ट्रा में करती थी, लेकिन बाद में वो सोलो परफॉर्मेंस, अकेले परफॉर्मेंस देने लगी. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. Even though she couldn't hear, but all the top awards were conferred to Evelyn. And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement.
मतलब वो कहती है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हीरोइक अचीवमेंट नहीं है. इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर. तो कहती है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अगर आप मेहनत करते हो और आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो देन इफ यू आर परसेवरेंट. परसेवरेंट का मतलब होता है बेटा अ पर्सन हु कॉन्टिन्यूअसली गिव्स हिज परफॉर्मेंस. जो थकता नहीं है, कॉन्टिन्यूअसली अपने एफर्ट्स को लगाता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज परसेवरेंट. And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. उसको 1,000 से ज्यादा जो है मतलब कि इंस्ट्रूमेंट बजाने आते थे एंड इंटरनेशनल टूरिंग करती रहती थी. उसके पास हेक्टिक मतलब विद बहुत ही ज्यादा टाइट स्केड्यूल. It is intriguing मतलब very curious to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. मतलब जब आप उसको देखते हो तो आपको हैरानी होगी कि वो सुनती नहीं है फिर भी वो बजा सकती है. कैसे? In our 2-hour discussion she never missed a word. मतलब this is actually an interview. तो वो बता रहे हैं कि जब इंटरव्यू हुआ था तो बिना रुके बोल रही थी. अब ये पेपर में आपके क्वेश्चन आया हुआ है, men with bushy beards give me trouble. मतलब जिनकी लंबी लंबी दाढ़ियां होती हैं, बुशी बियर्ड मतलब जिनकी लंबी लंबी दाढ़ियां होती हैं, उनकी वजह से मुझे परेशानी होती है. क्यों? इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, क्योंकि वो करती थी लिप सिंकिंग. वो करती थी लिप सिंकिंग. शी यूज्ड टू रीड द लिप्स ऑफ द पीपल. मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं, देयर इज वन टेक्नोलॉजी, हम एक टेक्नोलॉजी होता है, इवन जो पुलिस होती है ना, वो भी जब दूरबीन लगाती है ना तो नॉर्मली दे वुड बी लिप रीडिंग द वो क्या बात कर रहे हैं. तो जब जिनकी दाढ़ियां होंगी, जब वो बात करेंगे तो उसको दिखाई नहीं देता था. इट इज अ होल फेस, एक्सेप्शनली द आईज. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट. मींस स्कॉटिश लैंग्वेज बिल्कुल फ्लुएंटली बोली. माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11. लेकिन वो कहती है कि उसकी स्पीच इसलिए क्लियर है क्योंकि 11 साल तक तो उसको सुनाई देता था. But that doesn't explain how he managed to learn French and master basic Japanese. लेकिन 11 साल तक तो उसने सिर्फ स्कॉटलैंड बोला, स्कॉटिश बोला था ना, तो उसको फ्रेंच, जापानीज वगैरह कैसे बोलना आता है. मींस शी वाज मल्टी टैलेंटेड. As for music, she explains, it pours in through every part of my body. जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो उसका अपर पार्ट होता है, जब ऊपर के आपके जो सुर जाते हैं तो उसके अपर पार्ट में वाइब्रेशन होता था. वेरस जब सुर नीचे की तरफ जाते थे तो लोअर पार्ट में. इट टिंगल्स. टिंगल्स मतलब आपकी चुटकी काटना. माई चीक बोन्स एंड इवन माई हेयर मतलब उसको गुदगुदी होती है, उसको चुटकी होती है उसके बालों में भी. मतलब शी कैन हेयर द म्यूजिक थ्रू ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ हर बॉडी. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing the stick into her fingertip. Xylophone होता है वो ऐसा बना होता है एंड उसमें बेल्स ऐसे बजा के करते हैं. By leaning against the drum मतलब उनकी तरफ ऐसे ड्रम को झुक के, she can feel the resonance. Resonance is a echo of the sound. उसको बॉडी में सुनाई देता है, महसूस करती है वो. ये पेपर में आया था. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and upper legs. मतलब कि पूछा जाता है कि वो जूते पहनकर स्टेज पर क्यों नहीं जाती थी. क्योंकि जूते पहनकर she would not be able to feel the vibrations. इसीलिए वो नंगे पैर bare feet जाती थी.
Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious soloist. Soloist मतलब single. Says master percussionist James Blades. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि समटाइम्स इट हैपन्स कि अगर भगवान हमसे कोई एक चीज छीन लेता है तो ही गिव समथिंग एल्स. व्हाट वी हियर शी फील्स. हम तो सुनते हैं, वो महसूस करती है. Far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. और इसीलिए वो म्यूजिक को बजाती भी उतने ही अच्छे तरीके से है. Evelyn confesses that she is something of a workaholic. Workaholic का मतलब होता है जैसे अल्कोहलिक होता है जो पीता रहता है, वर्कहॉलिक होता है जो काम करता रहता है, शॉपहॉलिक होता है जो शॉपिंग करता रहता है. These are the terms. These are the vocabulary. I have just got to work, often harder than the classical musicians. But the rewards are enormous. मतलब उसको बहुत सारे rewards मिलते हैं, बहुत सारे concerts करती है. Apart from regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. इसके लिए वो पैसा नहीं लेती है. She also gives high priority to classes for young deaf children, young musicians, sorry. Anne Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. उसने जो अपने लिए जो एक मुकाम बना लिया है, the one what she has made for herself is an inspiration. अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं. Evelyn Glennie has already accomplished more than most twice her age. मतलब जिस एज में वो है ना, लोग उसके डबल एज में भी उतना नहीं कर पाते जितना उसने इतनी छोटी सी उम्र में किया है. She has brought percussion to the front of the orchestra. मतलब पहले ऑर्केस्ट्रा में जो है percussion नहीं होता था, इंस्ट्रूमेंट्स. But now we are there. मतलब पहले singing होती थी. She and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped. People who look at to her say, if she can do, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. सिर्फ उसने जो है गाना percussion सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बजाए हैं, उसने लोगों को जो है हैप्पीनेस नहीं दी है. She has also given the inspiration to the people. So the first chapter what we read was Sound of Music. Ma'am. The first part was about Evelyn, who is a Scottish. As I told you that there is one more girl, Helen Keller. अगर आप उनके बारे में पढ़ोगे तो you will also understand. उनके बारे में आप पढ़ोगे. She had become blind, then she was not having the power of hearing also, and gradually she had even moved apart because she was not able to hear and speak. लेकिन इतना होने के बावजूद हेलन केलर हैड मास्टर्ड. मतलब उसको ना घर पे आकर उसकी एक टीचर पढ़ाती थी, उसकी पूरी स्कूलिंग घर पे हुई थी. एंड लेटर ऑन शी वाज डिटरमाइंड टू गो टू हार्वर्ड, और हार्वर्ड में एडमिशन लेना कोई मजाक नहीं था. एंड व्हेन शी वेंट ओवर देयर तो उसके ऊपर वहां पर बड़े सारे प्रेशर थे बिकॉज शी वाज नॉट एबल टू कोप अप विद द थिंग्स. लेकिन उसने हार नहीं मानी. एंड अल्टीमेटली शी ग्रेजुएटेड इन द ईयर 1900.
तो बेटा अगर हम चाहें तो we can do anything, but everything becomes on this word where there is a will, there is a way. No one is born as a dumber or an underachiever. अगर एक डेफ इंसान ये काम कर सकता है तो everyone can achieve. So this chapter gives you the moral of perseverance, determination. The second one is about शहनाई of बिस्मिल्लाह खान. बिस्मिल्लाह खान को जब भी कोई नाम से बुलाता है ना, हमारे यहाँ जब भी कोई शादी होती है, स्पेसिफिकली इन द नॉर्थ इंडिया, शहनाई वादन इज कंसिडर्ड एज ऑस्पिशियस. ऑस्पिशियस मतलब बहुत ज्यादा पवित्र, प्रिस्टाइन. शहनाई वादन बजना, हम कहते हैं ना भाई शहनाई कब बजा रहे हो. शहनाई इज एक्चुअली यूज्ड एज अ सिनोनिम टू मैरिज. और ये शहनाई को, शहनाई का एक रूप देने वाले जो थे, दैट वाज बिस्मिल्लाह खान. दो ही वाज अ मुस्लिम, yet he had given this a new art. और ये कब से शुरू हुआ? एम्परर औरंगजेब बैन्ड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी. पहले जमाने में बोलते थे क्या पुंगी बजाता है, बिकॉज इट यूज टू गिव अ वेरी अनप्लेजेंट साउंड. इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल, श्रिल मतलब चीखता हुआ, अनप्लेजेंट साउंड. पुंगी became the generic name for reeded noise makers. रीड आपके जो होते हैं जैसे कि फ्लूट, क्लैरिनेट, जिनमें आपके छेद बने होते हैं. Few had thought that it would one day be revived. A barber of a family of professional musicians, मतलब वैसे तो वो नाई थे लेकिन सब लोगों ने म्यूजिक सीखा हुआ था, who had access to the royal palace, decided to improve the tonal quality of पुंगी. उनका पैलेस में आना जाना था तो उन्होंने सोचा क्यों ना पुंगी के टोन को चेंज किया जाए. सो उनमें से जो एक बार्बर था, he chose a pipe with a natural hollow stem. नीचे से मतलब आपका खोखला, hollow मतलब खोखला, that was longer and broader than पुंगी, लंबा. Made 7 holes on the body of the pipe. 7 notes के लिए 7 holes. When he played it, closing and opening, उसको जब बजाते थे, मुरली बजाते तो वो holes को बंद करते थे, तो the soft and melodious sounds were produced. अब उन्होंने जो है, ये आपकी पुंगी है, ये शहनाई है. उन्होंने क्या किया? He played the instrument before royalty and everyone was improved. उन्होंने इस पुंगी का जो ये वो जो गोल सा बना हुआ ना, इसको काट दिया क्योंकि ये आपका जो है थोड़ा अनप्लेजेंट साउंड देता है, जस्ट लाइक आपकी जो बीन होती है ना वैसा. और उन्होंने क्या किया, उसको एक लंबा करके उसमें 7 नोट्स बना दिए. The instrument so different from the pungi had to be given a new name. As the story goes, since it was first played in Shahi chamber, Shah मतलब Shahi chamber, and was played by a nai, barber हिंदी में, so it was said शहनाई. ये पेपर में आपका क्वेश्चन आता है, how did शहनाई acquire its name? शहनाई को ये नाम कैसे मिला था? तो पहले ये पुंगी था, and then a barber had revived it by making 7 holes. It gave a pleasant sound. It was played in the Shah, यानी कि royal area. So that is why it came to be known as शहनाई. The sound of the शहनाई began to be considered auspicious. आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था that no marriages in Indian tradition was considered complete without शहनाई वादन. शहनाई has become a synonym to marriage.
शहनाई कब बजवा रहे हो? And for this reason it is still played in temples and is an indispensable मतलब जिसको आप अलग नहीं कर सकते, component of any North Indian wedding, मतलब it is attached. In the past, Shehnai was part of the Naubat or traditional assemble of 9 instruments found at Royal Naubat. 9 instruments में से एक था. Till recently it was used only in temples and weddings. लेकिन उसको स्टेज पर लाने का सारा क्रेडिट जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. As a 5-year-old, मतलब जब वो 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान played गिल्ली डंडा near a pond in the ancient estate of Dumrao in Bihar. वो वहां पर बच्चों की जैसे जैसे बाकी बच्चे होते हैं वो भी गिल्ली डंडा खेलते थे. उनके अपने पूर्वज एंशियंट मतलब उनके अपने दादा परदादाओं की जो जायदाद थी वहां पर एक छोटा सा तालाब था. He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chhaith. वहां पे वो गाना गाने के लिए जाते थे. क्यों जाते थे पता है? Not because he liked to sing, but वहां पर एक लड्डू मिलता था जो 1.5 किलो 1.25 किलो का होता था as a prize. He would go to sing that Bhojpuri Chhaith because he would be earning the laddu. This happened 80 years ago. And the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. Like he was born into a very humble background. बाकी बच्चों के जैसे वो भी खेलना कूदना यही था. उनको लड्डू पसंद थे तो गाना गाते थे, लड्डू मिलता था. कौन जानता था कि वो इंसान, वो छोटा सा बच्चा एक दिन हिंदुस्तान का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हमने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है इफ वी हैव कंट्रीब्यूटेड उसके लिए दिया जाता है. Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasool Bakhsh Khan was the Shehnai Nawaz of Bhojpur King's Court. His father Paigambar Bakhsh was another paternal मतलब पापा की तरफ, चाचा मतलब चाचा ताऊ, इनको पैटर्नल बोलते हैं. और मैटर्नल होता है मामा जो मम्मी की तरफ होते हैं. All the ancestors were also great शहनाई players. मतलब पूरी फैमिली जो है वो म्यूजिशियन की फैमिली थी. The young boy took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the शहनाई. वो उनको देखता था और उनको बहुत अच्छा लगता था. Soon he started accompanying his uncle Ali Bakhsh to the Vishnu temple of Benares, where Bakhsh was employed to play the शहनाई. वहां पर उनको शहनाई बजाने के लिए पैसा दिया जाता था. He was employed over there. ये भी साथ में जाते थे. Ali Bakhsh would play the शहनाई and Bismillah would sit captivated मतलब अचंभित, surprised for hours. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. धीरे धीरे उनको भी वो सीखने को मिला और पूरा दिन बजाते. And would for years to come the temple of Balaji, Mangal Maiya and the banks of Ganga became the young apprentice. Apprentice होता बेटा जो किसी के नीचे ट्रेनिंग ले रहा होता है. A person who is taking training under some skilled person. जैसे आपने देखा होगा अगर आप गाड़ी ठीक करवाने जाते हो तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप 16-17 साल के, उनको बोलते हैं वो छोटू पाना लेकर आ. So they teach them through the skills. तो इसको भी सिखाया जाता था. Where he could practice in solitude. Solitude मतलब बिल्कुल अकेले.
The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of शहनाई. पहले शहनाई में सारे राग नहीं गाए जाते थे, लेकिन वो अकेले बैठकर he would be practicing and he would be inventing the new raga. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, मतलब उस वक्त के बहुत माने हुए उस्ताद फैयाज खान, उन्होंने कहा वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. मेहनत करो तो तुम देखो. तब इंडिया में ऑल इंडिया रेडियो सबसे पहले आया था, फिर दूरदर्शन आया था 56 में. तो ऑल इंडिया में पहले क्या होता था, ऐसे हिंदी गाने नहीं बजते थे जैसे आजकल. तो ये होता है कि अभी एफएम चलाओ तो एक गाना बजना शुरू हो जाएगा, फिर आप 4 चैनल्स में उसको सुनोगे. तो ऐसा नहीं होता था. एआईआर में रिस्ट्रिक्टेड सॉन्ग्स होते थे एंड द पीपल, द प्लेयर्स, जो कि आपके म्यूजिशियंस वगैरह होते थे, वो लोग आकर खुद गाते थे, कंसर्ट देते थे, इवन द सिंगर्स ऑल्सो. In 1938 he came the biggest ब्रेक. ये पेपर में आया है. क्यों? क्योंकि उनको ऑल इंडिया रेडियो में गाने का मौका मिल गया. उस जमाने में रेडियो में जाकर जो है लोग नौकरी करते थे. और आपको पता है हमारे वेरी फेमस अमिताभ बच्चन जी, he had given an interview in All India Radio for news anchoring. And संजय दत्त के जो फादर थे सुनील दत्त, उन्होंने भी दिया था. सुनील दत्त वॉज अ न्यूज एंकर, उनको सिलेक्शन हो गया. एंड यू डोंट नो, मुझे पता आप दोनों को नहीं पता होगा, देयर वॉज अ फेमस एक्ट्रेस स्मिता पाटिल, प्रतीक बब्बर की मदर. शी वॉज ऑल्सो अ न्यूज एंकर. तो जब अमिताभ बच्चन जी गए न्यूज एंकर के लिए, तो उनको ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि उनकी जो आवाज है ना वो बहुत डरावनी है. एंड टुडे अमिताभ बच्चन्स वॉइस इज सेड टू बी वन ऑफ द की वॉइस. तो उस जमाने में ऑल इंडिया रेडियो में गाना या फिर न्यूज रीडिंग करना बहुत बड़ी बात होती थी. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ न्यूज रीडर इन ऑल इंडिया रेडियो, बिकॉज वो बोलने का ना वो एक अलग सा तरीका होता था. एंड वो लाइव बोलते थे, सिंगिंग भी, म्यूजिक भी, एवरीथिंग वाज डन इन द स्टूडियो एंड इट वुड बी ब्रॉडकास्ट. He soon became an often heard मतलब लोग उनको बहुत सुनते थे, लोग उनको बहुत ज्यादा सुनते थे, पसंद करते थे. मतलब he was popular, he was very popular. When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah became the first Indian to greet the nation with its शहनाई. जब जवाहरलाल नेहरू जो हैं, उन्होंने पर्सनली इनको इनवाइट किया था. He poured his heart out into Raag Kafi from the Red Fort to the audience, which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. Tryst with Destiny जो है बेटा, that was a speech, आपके उसमें आएगा, वो SST में आएगा. वो आपका था कि हम आगे आने वाले टाइम में how we are going to handle the country. Tryst with Destiny. It's a very famous speech. कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में लिखा हुआ है ये. तो पहले शहनाई मतलब अनाउंसमेंट हुआ that from tomorrow dawn of 14th or 15th August India is now an independent country. उसके बाद इस गाने के साथ मतलब शहनाई वादन के साथ इसको स्वागत किया गया था. Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken by the maestro. Maestro होते हैं बेटा, उस्ताद को हम बोलते हैं. And maestro होता है a person who has mastered. A person who has mastered. That he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. Souvenirs आपके होते हैं कुछ यादें, कुछ मेमेंटोस. जैसे आजकल तो हम लोग
ट्रॉफी वगैरह देते हैं, तो वैसा होता है सोवेनियर्स। कहीं पर भी हम जाते हैं, मान लो आप गोवा गए तो वहां से कुछ लेकर आ गए, वहां के हिसाब से जो वहां बहुत अच्छा लगता है वो, दैट्स ऑल कॉल्ड एज सोवेनियर्स। मीन्स ही वॉज सो फेमस कि वहां पर भी लोग जो है उनको इतनी पसंद करते थे, राजा ने उनको खुद गिफ्ट दिया था। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. Even film directors ने भी उनको दिया था। और एक मूवी थी जो उनके ऊपर था, गूंज उठी शहनाई, वेरी फेमस, और उसका एक गाना है, दिल का खिलौना हाय टूट गया। That was sung by what we call as Lata Mangeshkar, and this song is very famous song. This is the song I'm just playing for you, and this is मतलब कि बिस्मिल्लाह खान का ही ये था मतलब कि ये गाना उन्होंने कंपोज किया था। This was composed by Shehnai Wadam. This was one of the nationwide chartbuster. Despite this huge success in the celluloid मतलब मूवी वर्ल्ड, मतलब ऐसे तो अगर आज हम लोगों को मूवी वर्ल्ड में कोई चांस मिल जाएगा तो हम तो आसमान में उड़ेंगे ना, उनको नहीं पसंद था। He did not like the limelight. उनको ये चकाचौंध बिल्कुल नहीं पसंद था। बिस्मिल्लाह वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। उन्होंने एक किया था गूंज उठी शहनाई और दूसरा किया था कन्नड़ वाला सनादी अपना। वो कहते हैं आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। सब कुछ झूठा है। दैट्स वेरी ट्रू। Even the smile that they gave, that is completely a fake smile. He says with emphasis, मतलब वो चोक लगा के कहते हैं सब झूठा है। I don't want. Awards and recognition came thick and fast. Thick and fast is a phrase, मतलब साथ साथ में मतलब कि he was becoming successful. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in US. पहला इंडियन, like हमारे यहाँ से विवेकानंद जी was the first Indian to give speech, then अटल बिहारी वाजपेयी, then आपके लालू प्रसाद. They are some of the versatile people who have been invited in US and the platform. और लिंकन सेंटर में इतना prestigious है, वहां पर इनको बुलाया गया था. He also took part in the World Exposition in Montreal. Montreal is in Canada. In the Cannes में तो अभी ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा all are part. And in the Osaka Trade Fair, so well known did he become internationally that an auditorium in Tehran आपका ईरान में है, was named after him, ताहर मौसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. मतलब वो इतने फेमस है कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम ही उनके नाम पर बना हुआ है. He was so loved by everyone. And the name of the auditorium is Tahar Mosik Ustad Bismillah Khan. National awards, ये तो थे इंटरनेशनल, बट नेशनल अवार्ड्स भी मिले उन्हें, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, बट सबसे बड़ा अवार्ड था भारत रत्न, the highest civilian awards. With the coveted award, coveted मतलब काफी desire होता है, everyone wants, resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness. उन्होंने सिर पकड़ा हुआ था and he was having happiness. उन्होंने एक ही बात की थी, all I would like to say is teach your children music. गाना जरूर सिखाओ, म्यूजिक जरूर सिखाओ, इंस्ट्रूमेंट जरूर सिखाओ. My father-in-law used to say, जिनको म्यूजिक आता ना उनका दिल बहुत सॉफ्ट होता. मतलब आफ्टर माई, हमारे यहाँ तो साउथ में तो होता है
when the girl comes तो उसे बोला जाता है गाना गा के दिखाओ. अगर if she knows how to play any instrument तो उसे बोलते हैं बजा कर दिखाओ. So as I told you in the last class that I had learned Carnatic music and I used to sing with my mom in very number of events also. So I was also asked to sing the song. I sang. So then my father-in-law said that the person who knows music has a soft nature. I don't know whether it is right or no. That is what he told. All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. आजकल तो now the very current example is A.R. Rahman. उन्होंने start किया था from the Tollywood, Tamils में, तेलुगु में, then आपका what we call Hindi, and now he is internationally acclaimed musician. उनके fusions हैं इतने सारे. In spite of having traveled all over the world, खान साहब, मतलब उनको प्यार से बिस्मिल्लाह खान को खान साहब बुलाते हैं, as he is fondly called, fondly मतलब प्यार से, is exceedingly fond of Benares and Dumarau, and they remain for him the most wonderful towns of the world. वो दुनिया घूमे हैं. He has gone to US, he has gone to West, he has gone everywhere. But उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उनका गांव बिहार, दुमाराव and Benares. A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the US. And the student promised to recreate the atmosphere of Benares by replicating the temples. उसने कहा मैं यहाँ पे बड़े सारे टेम्पल्स बनवा दूंगा, यहाँ पर मैं एक एकेडमी बनाऊंगा और आप उसके मतलब की हेड होंगी. खान साहब ने पूछा if he would be able to transport river Ganga. टेम्पल्स तो बना दोगे, गंगा भी लाओगे क्या? Later he is remembered to have said that is why whenever I am in a foreign country I keep yearning to see Hindustan. Yearning मतलब longing, मतलब उनको लगता है मैं कब वापस जाऊंगा, मैं कब वापस जाऊंगा, कब मैं वापस जाऊंगा अपने देश. मतलब he loves his soil more than any other country. While in Mumbai I think only of Benares and Holy Ganga, and while in Benares I miss the unique matta of Dumara. कहते हैं मैं मुंबई में रहता हूँ मुझे बनारस याद आता है, बनारस में रहता हूँ तो मुझे अपनी गांव याद आता है और वहां का जो मट्ठा द कर्ड से बना हुआ. Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim, devout मतलब जो अपने रिलीजन को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, कट्टर, हिंदी में हम बोलते हैं कट्टर, like him can very naturally play the शहनाई every morning in the काशी विश्वनाथ टेम्पल. है तो वो मुसलमान लेकिन वो प्ले करते थे काशी विश्वनाथ टेम्पल में. शेखर कपूर, शेखर गुप्ता, when partition happened, didn't you and your family think of moving to Pakistan? तो एक मतलब कि ये एक इंटरव्यू था. God forbid me leave Benares. Never I went to Pakistan once. I crossed the border just to say I've been to Pakistan. I was there for about an hour. I said namaskar to the Pakistanis, salam alaikum to the Indians. I had a good laugh. मैं वहां पर था, मैंने इंडियंस को सलाम अलैकुम बोला और पाकिस्तानी को नमस्ते किया. He mean to say he tried to unite both of them. वैसे तो पाकिस्तानी सलाम अलैकुम बोलते हैं लेकिन उन्होंने जो है उल्टा किया जिससे कि दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें. Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. जैसे मैंने आपको बताया कि वो बनारस में रहते थे आफ्टर जब वो रिटायर वगैरह हो गए थे, मतलब when he was not paying that playing and all, तो he used to travel by rickshaw only. और उनका घर अभी भी आप देखोगे तो सिंपल सा है. He was given a state funeral, मतलब he belonged to यूपी में रहते थे तो वहां पे स्टेट फ्यूनरल में क्या होता है, आपका जो फ्लैग होता है
whenever a person who of a dignity, महान आदमी की डेथ होती है तो फ्लैग्स को डाउन कर दिया जाता है एंड नॉर्मली उनको जो है जैसे तोपों की सलामी देते हैं, कभी कभी उनके जो बॉडी होती है उसको फ्लैग से नवाजा जाता है, मतलब अलग अलग तरीके से. एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे नेशनल मोर्निंग. एक दिन के लिए क्या होता था, आजकल तो मॉर्निंग वगैरह बहुत कम हो चुका है बिकॉज वी आर हैविंग नंबर ऑफ चैनल्स. मुझे याद है व्हेन इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड फॉर एटलीस्ट 15 डेज हमने बस गाना लगाते थे, रेडियो लगाते थे, क्योंकि उस दिन कर्फ्यू लग गया था. वो गाना लगाते थे, वो आता था करके गाना आता था. नो मूवीज. 3 दिन बाद भगवान वाले मूवीज आते थे, नॉट द नॉर्मल मूवीज, क्योंकि उस जमाने में माना जाता था कि जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट वगैरह की डेथ होती है तो फ्लैग को नीचे कर दिया जाता है, इट इज नॉट हॉइस्टेड. एंड ऑन द अदर हैंड आपके जो रेडियो टीवी होता है उसके अंदर किसी भी तरीके का एंटरटेनमेंट नहीं आता. दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल. अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अगर होगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि नाउ वी आर हैविंग ऑल द प्राइवेट चैनल्स. हमारे पास सारे प्राइवेट चैनल्स हैं तो उनके अंदर सब कुछ ही आ जाएगा. बट आई रिमेंबर वी वर देयर इन माई ग्रैंडफादर्स डेथ. मेरे ग्रैंडफादर की डेथ और वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर थे उन दोनों की डेथ सेम डे हुई थी. इनफैक्ट मेरी मम्मा बताती थी दैट ही यूज्ड टू टेल, जब वो छोटी थी तो कहते थे एमजीआर और मेरी जो हॉरोस्कोप है ना वो सेम है. मम्मा कहते हैं हम लोग उनका मजाक उड़ाते थे, हम कहते थे अच्छा वो तो चीफ मिनिस्टर है और आप क्या हो. एंड यू वोंट बिलीव ऑन 24th December 1984 my grandfather and MGR both died. तो उनकी बॉडी को लेकर आना बड़ा डिफिकल्ट था फ्रॉम द हॉस्पिटल. तो मेरी कजन्स मुझे बताते हैं कि मतलब कि नाना जी की जो बॉडी थी उसको ब्लैक फ्लैग में जो है मतलब वो करके लेकर आना पड़ा था. तो जब गाना चलाते थे ना तो सारे के सारे ऐसे बिल्कुल रोने वाले, सिर्फ द हिंदुस्तानी क्लासिक चलाया जाता था. देन अगर मूवी सॉन्ग आते थे 3 या 4 दिन बाद, and that depends, 1 day national mourning, 3 days national mourning, 7 days national mourning, that depends कि वो कौन था. like शहनाई मतलब कि बिस्मिल्लाह खान वॉज अ म्यूजिशियन, लेकिन कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर होता है तो फिर उनके लिए ज़्यादा होता है, तो नेशनल मोर्निंग उसको बोलते हैं. बट देर आर मेनी पीपल लाइक बिस्मिल्लाह खान. एक और भी थे, I don't remember his name right now, he was also from Bihar, he was called as a mountain man. उनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी द माउंटेन मैन. तो उन्होंने क्या किया था, उनकी जो वाइफ थी शी हैड डाइड बिकॉज उनके बिहार के आसपास में देयर वाज नो हॉस्पिटल. तो उन्होंने जो है वहां पर जितना बड़ा पहाड़ था ना 20 साल अपने हाथों से अकेले उस पहाड़ को खोदा एंड ही मेड अ टनल. माझी उसका नाम है, माझी. एंड ही इज कॉल्ड एज अ माउंटेन मैन. तो जब उनकी डेथ हुई थी तभी स्टेट फ्यूनरल हुआ था. सो सम पीपल हु डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी द गवर्नमेंट गिव्स देम स्टेट फ्यूनरल्स. हमारे सोल्जर्स को तो हमेशा ही दिया जाता है बिकॉज दे आर ऑल यू नो माइटी पावरफुल. बट ऑल द पीपल हु डू समथिंग फॉर द, जैसे लता मंगेशकर जी की डेथ हुई थी तो महाराष्ट्र में शी वॉज गिवन द स्टेट फ्यूनरल एंड the mourning was there. Thus he was such a figure. हम बोलते हैं हिंदू मुस्लिम, but even though he was a Muslim, yet he had given a new art to शहनाई. आपके पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि शहनाई का नाम कैसे शहनाई पड़ा था. Then how was पुंगी revived? Then what did शहनाई मतलब कि बिस्मिल्लाह खान ने जवाब दिया था when he was asked to come to US. And then
some important other questions आ सकते, right?